अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो मैंने ये वीडियो शेयर करनी है इसमें प्लीज आप हेल्प ले सकते हैं कि हाउ वी कैन सॉल्व द प्रैक्टिकल ऑफ चैप्टर नंबर 19 related to presentation. So this is task 19B, and this task we have to solve it. So please you listen and watch with concentrations. As far as the statement of the task 19D is what? Add a new slide between slides 4 and 5 of the presentation that you saved in task 19C. And we have already worked on 19C, and I have shared task 19C in your WhatsApp, and I have done with you in computer lab. So first of all, what the statement in first line is that we have to add a new slide between slide 4 and 5 of task 19C. So this is 19 task C. So we have to add the new slide between 4 slides and 5 slides. So there are two ways in which we can insert a new file. Click on there and this line will be appear on the screen. This is, and go to the slide sections of the home tab and this. So there are different patterns of slides. So we have to select according to the statement, what the statement is basically, and according to the statement, we have to choose this slide. So if we go back to the statement, and there is clearly said that this slide will contain the heading, ease of use, a chart, and this bulleted list. There are three options. There are three sections are there in one slide. एक हेडिंग होगी, एक में चार्ट होगा और एक में बुलेटेड लिस्ट होगी, जिसमें ये बुलेटेड लिस्ट में आपने ये इंफॉर्मेशन लिखनी है जो कि उसने नीचे बताई हुई है, और जो चार्ट है उसके लिए जो डाटा क्रिएट करना है उसके लिए ये हमारे पास कैटेगरीज हैं. तो ये चार्ट के लिए हमने इंफॉर्मेशन यूज करनी है जो कि स्टेटमेंट use this data to create a chart, easy 103, difficult 12, and no response. Okay. And second is this is bulleted list. ये चार्ट के लिए हमने एक अलग इस्तेमाल करनी है और चार्ट को भी शो करना है, और एक हेडिंग की अलग होना है. So there are three sections involved in this slide. So we have go to that. So we have to add a new slide between the slides 4 and 5. Already the blue line is there. It means I have clicked on that and go to the new slides and choose comparison, this list. Okay. So there are, you know that this is unmanageable and we have to manage this. First of all, you adjust according to the screen, so you can easily manage. Okay. This one. Okay. So there are two chapters, so you can this is for heading. We have to according to this. Is it clear? So now this is according to the statement. This first box is for heading. This is for bulleted list and this for chart. So first of all, we have to, according to the task 19D statement, heading ease of use. So we go back and there we will use type ease to use. As you have the heading ease of use here and a chart and this bulleted list, 80% of the student found it easy to use, 120 student in the simple sample. So what we have,
one is the bulleted list. In bulleted list sections, we choose first, and we have to write %86 use. Next, 120 these two statements we have written in bulleted list. Okay, and according to the good according to this task 19D, so we go back to the at the end of the following style of text throughout the entire presentation we have to follow. So in this, the heading should be a dark blue serif, left aligned, and 40 points. Is it clear? So we have for the heading, we will use these types of options here. Dark blue for heading, dark blue, this, dark blue, and then serif mean Times New Roman, already selected, and then left line and 40 points. Font size would be font size already 40, and it would be a left aligned already. So this is always for heading style. And for what style of bulleted list, black, sans serif, left line, and 24 point. First of all, we select the whole. The color must be a black, and there would be a Arial. This one, and the font size must be 44. Is it clear? Now, what we will do next, using this data to create a chart. So now we will go to the second section in this slide, and we have to select a chart. So there are two ways in which you can add a chart. One, when you will close your pointer to this, and there is, you are looking here, insert chart, or in insert section, or sorry, in insert tab, there would be a chart. In illustration section, there will be an icon of a chart, and you can click here, and there can be a different types of charts will be appear on the screen, and you can choose one of them. Okay, so we click on that, and there are a different charts, but we have to choose a pie chart because in comparison chart is very important for this. So we click on this, and this will be appeared on the screen. And what we will do this, okay, as the chart is appeared on the screen, also the related data would be on the Excel will be here. Okay, so first of all, what we will do this, first of all, please go back to the task 19D, और यहाँ पर आप डेटा देखें, यहाँ पर हमने एक चार्ट बनाना है, और उसके साथ ये कुछ हमें रिक्वायरमेंट्स दी गई हुई हैं. जाहिर है हम अकेला चार्ट यहाँ पे शो नहीं करेंगे जब तक उस चार्ट से रिलेटेड हम डाटा शो नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हम डाटा शो नहीं करेंगे हम चार्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पा सकते कि चार्ट किस लिए बनाया गया है. तो ये जो डाटा है चार्ट के साथ, जिसमें लिखा हुआ है इजी 103, डिफिकल्ट 112 एंड नो रिस्पॉन्स फॉर 5. तो हमने क्या है, फर्स्ट नंबर्स में हमने 103 और हमने स्टूडेंट्स में इजी और ये लिखना है. क्रिएट अ चार्ट, शो द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच कैटेगरी. तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, राइट क्लिक आप इस पे करें यहाँ पे, एंड यू गो टू द एडिट डाटा, एंड देयर आर टू ऑप्शन, एडिट डाटा, और अब आपके सामने ये एक आ गई. ठीक है,
ये आपके पास ये चार्ट की। अब हम इसकी जरा स्क्रीन इसका चेंज आउट कर सकते हैं। ये अब ये हमारे पास इस तरह का हमारे पास आएगा चार्ट। जरा गौर से देखिएगा इसको। हमारे पास क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है 3, तो हमने सेल की जगह पे हमने यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखना है इजी। और सेकंड इजी पे कितने स्टूडेंट्स हैं, 103। एंड नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है डाटा की डिफिकल्ट, और उसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं 12। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है नो रिस्पॉन्स, और हमारे पास ऑप्शंस हैं 5। और बाकी जो हैं हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब आप देखें यहाँ पे हमारा इस चार्ट का जो लेबल है वो स्टूडेंट्स है, और इजी, डिफिकल्ट और नो परसेंटेज। ये हमारे पास सिचुएशन बन गई जो उसने हमें चार्ट दिया हुआ था कि इसके मुताबिक हमने ये चार्ट देना। और ये हमारे पास ऑलरेडी डाटा है। इसको एक दफा डाटा को हम दोबारा देखना चाहें तो इस पर राइट क्लिक करें और एडिट डाटा पे जाएं। जब आप एडिट डाटा पे जाएंगे तो ऑलरेडी जो हमने डाटा इस एक्सेल शीट में इंसर्ट किया है वही शो रहा है। अगर हम इसमें मॉडिफिकेशन या चेंज करना चाहते हैं तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं। इसको हम क्लोज करते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि मजीद उसने क्या कहा कि हमने क्या करना चाहिए। तो हमारे पास ये ऑप्शन हो गई। अब हमने सिंपली क्या करना है, इसके बाद ये हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे कि ऑन स्लाइड 1 एट द हेडिंग हिट्स एंड टिप्स। सो गो बैक एंड देयर इज वन स्लाइड, और यहाँ पे हमने हेडिंग देनी है हिंट्स एंड टिप्स की। हिंट्स एंड टिप्स, हिंट्स एंड टिप्स की हमने हेडिंग दे दी, ठीक है। और उसके लिए जरा दोबारा जाएं। इसके अलावा आपने क्या करना है, एंड एड द सब हेडिंग फॉर IGCSE स्टूडेंट्स। और हमने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हेडिंग के लिए हमने क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर IGCSE स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके साथ सब हेडिंग के साथ हमने क्या करना है। नीचे सब हेडिंग का स्टाइल देखें, एक तो ये ब्लू में होना चाहिए, ठीक है। फिर इसका सेंस सेरिफ एरियल होना चाहिए, सेंट्रल अलाइन और 30 पॉइंट्स होना चाहिए। हम दोबारा जाते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको 30 पॉइंट्स दें। 30 नहीं है तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, ये 30 पॉइंट्स। और यहाँ पे हम इसको एरियल ऑलरेडी सिलेक्टेड है और इसको सेंटर में करेंगे, जबकि हेडिंग के लिए हमारे पास क्या थी, हेडिंग में हमने लेफ्ट अलाइन करना है और 40 पॉइंट रखना है इसको। हमारे पास इसका जो है ये लेफ्ट अलाइन है और ये 40 पॉइंट ही है, लेकिन इसका सेन तो ये हमारा हो गया उसके मुताबिक। ये हमारा था। अब अकॉर्डिंग टू द task 19D, we have done successfully all the steps. First of all, we have added a new slides between the slide 4 and 5. If you have done already in task 19C, then you can add easily.
उसके बाद इस स्लाइड में हमने चूज किया एक नई, आपको बता एक हमने नई स्लाइड ये चूज की, और इसको जो इस स्टाइल का इस स्लाइड का जो पैटर्न था वो कंपैरिजन था। उसमें 3 सेक्शन थे, ये एक टाइटल हो गया, एक बुलेटेड लिस्ट हो गई, और एक चार्ट, और चार्ट से रिलेटेड ये डाटा इजी, डिफिकल्ट और नो रिस्पॉन्स। अगर हम इसमें मजीद अगर हम इसको शो करना चाहते हैं या इसके लेबल हम देखना चाहते हैं तो हम इसको एडिट डाटा से आप करेंगे, तो आप इसमें अपने डाटा को भी शो कर सकते हैं मुख्तलिफ कलर के साथ और परसेंटेज के साथ इसको हम शो कर सकते हैं। इसके अलावा उसके बाद स्लाइड 1 में किया और उसमें हेडिंग हिंट्स एंड टिप्स लिखा और ऐड द सब हेडिंग में IGS स्टूडेंट्स लिखा हमने, और फिर ये तीनों हेडिंग के लिए, सब हेडिंग के लिए और बुलेटेड लिस्ट के लिए हमने तीनों स्टाइल दिए। तो ये स्टूडेंट था हमारा सिंपल टास्क 19D। अब अगर हमने इसी का टास्क अगर हमने टास्क 19E लेना है तो उसमें हम सिंपल करेंगे, उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा चलें 19 टास्क ई में और हम ओपन करते हैं उसमें कि उसमें हमने क्या करना है। हम ब्राउज पे चलते हैं। 19E टास्क बहुत सिंपल है, उसमें उन्होंने यही कहा है कि स्लाइड 1, स्लाइड 2 और स्लाइड 3 में आपने प्रेजेंटर नोट्स लिखने हैं। अब प्रेजेंटर नोट्स के लिए हम क्या करेंगे, ये टास्क 19, ये टास्क ई है, ठीक है। अब उसने कहा है कि अब ये देखें, ये टास्क, ये स्लाइड 1 है और स्लाइड 1 में उसने क्या लिखा हुआ है कि प्रेजेंटर, ये हमारे लिए प्रेजेंटर की प्रेजेंट क्या करनी है, जरा गौर करें। ये जो मैंने सिलेक्ट किया है अब आपको वाजे हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें उसने क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन गिविंग यू यूजफुल hints and tips on using Microsoft PowerPoint for your IGCSE practical examination। सो ये जो हमने प्रेजेंटर नोट लिखा है ये स्लाइड 1 के लिए है, इसलिए स्लाइड 2 के लिए ये प्रेजेंटर नोट है, और स्लाइड 3 के लिए नहीं है, स्लाइड 4 के लिए प्रेजेंटर नोट है, और स्लाइड 5 के लिए प्रेजेंटर नोट है। तो ये सिंपल हमने ये इस तरह हमने लिखा, और ये नीचे आपके पास ऑप्शंस आ जाती है जहां पे आप क्लिक करेंगे और आपको वाजे हो जाएगी कि आपने टास्क यहाँ कहाँ लिखे। अब फर्ज करें अगर हम चलते हैं टास्क 19C पे जिसको हमने डी अभी बनाया था, तो यहाँ पर प्रेजेंटर नोट्स के लिए हमने सिंपल और कुछ नहीं करना, हम नॉर्मल व्यू में जाएंगे और इसमें नोट्स का एक हमारे पास होगा ऑप्शंस, और वहां पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास नोट्स का ऑप्शन आ जाएगा वहां पर। इसलिए इसमें नॉर्मल व्यू में हम जाएंगे और ये प्रेजेंटेशन हमारे पास व्यू हैं और ये नोट्स पेज हैं, और यहाँ पर हम स्लाइड 1 के लिए नोट्स लिखेंगे। इसी तरह कुछ और के लिए भी हम यहाँ पे लिखेंगे फिट टू विंडो, और यहाँ पर हम शो कर सकते हैं। मैं इसको ज़रा ख़त्म करता हूँ और आपको बताता हूँ कि हमें कैसे इस सिचुएशन में जाना है। ये नीचे आपका नोट्स लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप क्लिक करें और यहाँ पर आप कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि पहला था वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन एंड सो ऑन। सो इसी तरह अगर आप सेकंड स्लाइड पे हैं तो ऑटोमेटिकली ये अपीयर होगा और यहाँ पर आप प्रेजेंटर नोट्स यहाँ पे लिख सकते थे।
तो स्टूडेंट्स ये दोनों टास्क 19D और 19E शामिल हो चुके हैं। इनको गौर से आप एक दफा गौर से सुनिएगा और देखिएगा और फिर इसके बाद खुद से आप इसको कीजिएगा। तो आई होप दैट इसको आपने समझ लिया होगा और प्रैक्टिकली आप इसको परफॉर्म